प्रेज लॉर्ड सबको, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आइए हम आज का मीटिंग प्रार्थना करके शुरू करते। लेट अस प्रे एंड स्टार्ट। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद प्रभु आज का दिन के लिए। हम सबको इस प्रकार से और एक बार इकट्ठा किया, ये मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। दिन प्रतिदिन, हफ्ते भर हफ्ते, महीने भर महीने, आप सालों से हम सब के जीवन से आप जीवन में कार्य कर रहे। आप वचनों से बात कर रहे प्रभु, और आपका वचन हमारे जीवन में फल ला रहे। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, हर एक उन क्षेत्रों में जहाँ पर हम अभी भी अधीन नहीं है, पिता परमेश्वर हम आपसे क्षमा मांगते और हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा का अद्भुत कार्य हमारे जीवन के हर क्षेत्र में होने दे परमेश्वर, ताकि आपके पुत्र यीशु के आने के लिए हम सब तैयार रहे। इस शाम भी हम इस आशा से बैठे हैं प्रभु कि आप हम सबको आपके उपस्थिति से आशीष कर प्रभु, परिवर्तन से आशीष कर परमेश्वर, बच्चों को आशीष कर प्रभु। यस लॉर्ड। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बच्चों, आप सब रेडी हो आज के लिए? ओके, हम वो गाना जो है हम रिवाइज करेंगे। ओके, सबसे पहले हम प्रार्थना का गाना गाएंगे, कीप मी ट्रू लॉर्ड जीसस। Keep me true, Lord Jesus, keep me true. Keep me true, Lord Jesus, keep me true. There's a race that I must run, there are victories to be won. Give me grace every hour to be true. There's a race that I must run, there are victories to be won. Give me grace every hour to be true. Then दूसरा कौन सा सीखा था बच्चे लोग? आप अनम्यूट करके मेरे साथ गाना गा सकते हो। ईशिता, महिमा, स्नेहा, तबीता, फिलेमॉन, आप सब अनम्यूट करके गा सकते हो। दूसरा गाना हमने सीखा था रेजिस्ट द डेविल। ओके, resist the devil, resist the devil, he will free from you. Draw near to Jesus, draw near to Jesus, he will draw near to you. Resist the devil, Resist the devil, he will draw near to you. draw near to Jesus, draw near to Jesus, and he will draw near to you. Very good, Philemon. और दूसरा कौन सा सीखा था? A merry heart. Okay, a merry heart is like a medicine. A merry heart is like a medicine. A merry heart is like a medicine. A merry heart. Okay, very good. फिर एक और हम संडे स्कूल में गाते थे, आपको याद है वो गाना? Cast your burdens unto Jesus, He cares for you. Cast your burdens unto Jesus, He cares for you. Higher, 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 higher. Lift up Jesus higher.
lower, 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 lower. Stamp the Satan lower. अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ, नीचे 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 शैतान को दबाओ। ओके, क्या बोलते हैं? अपना बोझ यीशु पे डालो। हमारी सारी चिंताएं, सारे जो कुछ भी हमारे टेंशन है, हमें यीशु पे डाल देना है। वो हमारी क्या करता है? हमारी चिंता रखता है इसके लिए। ओके बच्चे, अभी मेमोरी वर्स का टाइम है। सबसे पहले कौन बोलेगा? इशिता, इशिता एंड महिमा। Ishita and Mahima. Okay, Sneha can say memory verse. John 3:16 to 21. Some network issue is there. Sneha, you continue. John 3:16 to 21. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe in him stands condemned already, because they have not believed in God's one and only Son. This is the verdict: the light has come into the world, but people love darkness instead of light, because their deeds were evil. Everyone who does evil hates light and will not come into light for the fear that their deeds will be exposed. But whoever lives by truth will come into the light, so that it may be seen what they have been done in the sight of God. Okay, very good, Sneha. Ishita, are you ready? हेलो Yes. हेलो Yes, sister. हाँ सिस्टर महिमा बोल रही है आज। Okay, Mahima. हाँ, Start. भजन संगीता हेलो Yes, sister. We can hear you. हाँ, भजन संगीता 19 का 9 वचन। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। Okay, very good. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is righteous, purifying the heart. Very good. Ishita? हाँ, इशिता बोल रही है। हाँ. हेलो हाँ Yes, yes. Psalm I will go in the strength of the Lord God. I will make a mention of the righteousness, even of the sin only. Psalm 71:16. Psalm 71:16. आप फिर से बोलो इशिता, बराबर सुनाई नहीं दिया. I will go in the strength of the Lord God. I will make mention of the righteousness, even the sin only. Okay, very good.
तबीता Psalm 24 verse 1 and 2. The earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who live within. He has founded it upon the seas and established it upon the waters. Philu, one thing I have desired. One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. In the time of trouble he shall hide me in his pavilion. In the secret place of his tabernacle he shall hide me, he shall set me high upon a rock. Psalm 27 verse 4 and 5. 4 and 5. ओके, और कोई है स्तुति से? ओके बच्चों, वेल डन। आपको पता है आप ये सब मेमोरी वर्स याद करते हो, आपको पता है आपका जरूरत के समय में पवित्र आत्मा आपको याद कराएगा जब भी आपको जरूरत होगा। ओके, हमने ये अनुभव किया है, इसके लिए हम आपको मेमोरी वर्स गाना सिखाते हैं, याद करना सिखाते हैं। ओके चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल। लता सिस्टर, आप प्रार्थना करके आप वर्शिप स्टार्ट कर सकते हो। लता सिस्टर। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु बच्चों के लिए, प्रभु जो भी इन्होंने प्रभु आपके वचन को सीखा है प्रभु, हम प्रार्थना करके आने वाले दिनों में प्रभु इनके लिए ये वचन जो ज्योति है प्रभु के लेके ये लोग अंधकार में एक विजय प्राप्त करने वाले थे प्रभु। यानी प्रभु आप सहायता करना और मदद करना पिता परमेश्वर, ताकि वो आपको जाने, आपके करीब है पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपको देती है। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सबको प्रेज द लॉर्ड। हम एक आराधना में जैसे ही जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ये जो हमें चलाता है, नहीं तो हम काबिल नहीं है, योग नहीं है, लेकिन एक परमेश्वर ये जो हमें चलाता है, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। देखता हूँ मैं अब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको संभालता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता है, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं अब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको संभालता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ।
मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू हुआ हूँ। हालेलुया। हम लोग वचन में लिखा है कि हम और परमेश्वर के बीच में केवल एक ही बिचवई है, वो है पाप। जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। चाहे हम उसको जानते हैं, उसको जानकर भी अगर पाप करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम यीशु के करीब आते हैं तो हमारी जिंदगी जो है वो संवर जाती है। हालेलुया। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी में बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद पिता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम पाया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर,
आप प्रभु हमें आपके करीब आने से प्रभु, हम जब से आपके करीब आए प्रभु, हमारी जिंदगी प्रभु बदल गई है प्रभु। हाँ प्रभु, हम पाप में थे पर आपने हमें छुड़ाया, हमें बचाया, हमें सहलाया पिता परमेश्वर। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज हम जिंदा हैं प्रभु, आज हम खड़े हैं। हम योग्य नहीं थे पर आपके लहू की वजह से प्रभु आज हम योग्य ठहरा गए। आपने अपना लहू देकर प्रभु हमें छुड़ा लिया है पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। आगे का समय भी प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। Amen, amen. Praise God. आज जोसेफ पिंटो और फैमिली परिवार मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे। कुछ काम से वे लोग बाहर गए हैं, तो इसके लिए स्क्रीन में जो डालना वगैरह वो सब मैं साथ में करना पड़ा। एनीवे, थैंक यू लता सिस्टर हमें आराधना में लीड करने के लिए। तो कुछ लोग काफ़ी दूर से हमारे बीच में मौजूद है। ओके, तो लता सिस्टर और स्नेहा, अभिषेक, उन लोग जयपुर से अटेंड कर रहे हैं, तो काफ़ी दूर दूर से लोग हैं हमारे बीच में। प्रेज गॉड, आप वहाँ रहकर भी अटेंड कर पाए, प्रभु को धन्यवाद। इस टेक्नोलॉजी के लिए प्रभु को धन्यवाद। हमें इस प्रकार का मौका मिला प्रभु की आराधना करने के लिए और वचन सुनाने के लिए। आमीन। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ने अनुमति दी है आराधना वगैरह शुरू करने के लिए। अब देखते हैं कैसे हम लोग मिल पाएंगे कलीसिया में। बहुत सारे नियम वगैरह होगा, आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। ओके, लेकिन जितने भी दिक्कत होंगे, दिक्कतों के साथ प्रभु की आराधना, वचन, प्रार्थना हम चालू रखेंगे। आमीन। समय समय पर जो भी ज़रूरत है उन जो भी इंस्ट्रक्शंस है हमें मिलता रहेगा, कैसा हमें मिलना है, कैसे करना है, मीटिंग्स वगैरह, प्रार्थना। ओके, तो इस प्रकार से जूम में हम मिल पा रहे, ऑनलाइन मिल पा रहे, ये बहुत एक बड़ी बात है। प्रभु को धन्यवाद कि हम सब इस प्रकार से मिल पा रहे इसके लिए। कुछ लोग हमारे बीच में नहीं है, जैसे तवसीलन ब्रदर और परिवार, वे गांव गए हैं, इसके लिए जुड़ नहीं पाए हमारे साथ। तो जितने भी लोग हैं मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आज का वचन के लिए हम निर्गमन का पुस्तक में जाएंगे, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन का पुस्तक, जहां पर हम पिछले हफ्ते अभ्यास किए थे, वहां से हम जारी रखेंगे। निर्गमन का पुस्तक उसका 23 अध्याय, निर्गमन का पुस्तक उसका 23 अध्याय, 23 अध्याय के 13वां वचन तक हमने बहुत सारे परमेश्वर के दिए हुए आज्ञाओं के बारे में हमने पढ़ा। ओके, परमेश्वर किस प्रकार से इजरायली लोगों को, यहूदियों को आज्ञाएं दी,
और उन आज्ञाओं पर हमने जब ध्यान लगाया, मनन किए, तब हमें क्या सीखने मिला कि ये सब आज्ञाएं परमेश्वर इजरायलियों को किस प्रकार से इस संसार में जीना है, रोज के दैनिक जीवन में किस प्रकार से जीना है, उसके बारे में आज्ञाएं दी। बराबर। लोगों के साथ व्यवहार, संसार में, समाज में लोगों के साथ व्यवहार कैसा करना है। ओके। पशु प्राणियों के साथ, ओके, रोज के दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं जब होता है, पैसों का लेन देन जब होता है, उन चीजों में क्या क्या हमारा निर्णय होना चाहिए, हमारा प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। ओके। तो इन सब चीजों को लेकर परमेश्वर बहुत बारीकी से ध्यान देता है, ये हमें सीखने मिला। ओके। केवल चर्च में जाते वक्त, आत्मिक हमारे आत्मिक चीजों को करते वक्त, ओके, जो चर्च में है, चर्च में जो आत्मिक चीजें जो हम करते हैं, केवल उस समय हमें आत्मिक रहना है या कैसे व्यवहार करना है, ये नहीं परमेश्वर ने सिखाया, परंतु परमेश्वर ने इन आज्ञाओं के द्वारा संसार में कैसे जीना है उसके बारे में सभी आज्ञाएं आप देखेंगे ध्यान से। ओके। लेकिन विश्वासी लोग अक्सर कलीसिया में या मीटिंग्स में, प्रार्थना में एक आत्मिकता को दर्शाते हैं और एक आत्मिकता उन क्षेत्रों में सीमित ऐसा सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर के नजर से हम देखेंगे और इन वचनों के द्वारा हमें सीखने मिलता है कि आत्मिकता रविवार के उस 2 घंटे के मीटिंग में नहीं, या बाइबल स्टडी के 1 घंटे के मीटिंग में नहीं, परंतु आत्मिकता हमारे 24 घंटा इस संसार में जब हम जीते हैं, आत्मिकता वहां पर दिखना है। ये परमेश्वर के इन आज्ञाओं में कौन से क्षेत्र में परमेश्वर हमें पवित्र जीवन जीने के लिए इन आज्ञाएं देता है, उससे पता चलता है। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे उस काम करने के क्षेत्र में, समाज में, सामाजिक जीवन में, घर काम करने के लिए जो नौकरानी जो आती है, ऐसे स्तर के लोगों के साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं। एक गरीब व्यक्ति या सड़क में पड़ा हुआ एक व्यक्ति जो गाड़ी से टकराकर जो घायल पड़ा है, ऐसे अलग अलग भिन्न अवस्थाओं में जो चलते वक्त, ओके, गटर का जो ढक्कन खुला है और उस खुला हुआ उस ढक्कन के वजह से उस खड्डे में गिरा हुआ व्यक्ति, ऐसे लोगों के साथ कैसे प्रतिक्रिया करना है, ये सब बारीकी से परमेश्वर सिखाता है। पैसों के विषय में, पैसे का लेन देन जब करते हैं, उसमें पवित्रता कैसे निभाना है। ओके। तो ये सब विस्तार में हमें इन आज्ञाओं के द्वारा सीखने मिलता है। उसका मतलब एक ही है, मैंने पिछले हफ्ते कहा था, एक विश्वासी के लिए आत्मिक जीवन और सांसारिक जीवन, ऐसा 2 जीवन नहीं होता। देयर इज नो 2 kinds of life for a believer, spiritual life and secular life. No. जहां तक एक विश्वासी का सवाल होता है, हर चीज आत्मिक होता है। भले वो व्यक्ति ऑफिस में काम करता हो, बिजनेस करता हो, या वो व्यक्ति पास्टर हो, सब आत्मिक काम है। तो कृपया करके अपने मन से इस विचारधारा को निकाल दीजिए
कि जब तक हम हमारा इस संसार का काम या बिजनेस सब कुछ छोड़कर हम प्रभु के सेवकाई में, जैसा पास्टर रहता है वैसा प्रभु के सेवकाई में पूरी तरह से हम लग जाएंगे, तो ही हम आत्मिक काम कर रहे ऐसा बोल पाएंगे। ऐसा नहीं है। आप भले बिजनेस या काम करते हो, आप स्कूल में स्टूडेंट है या आप कॉलेज में हो स्टूडेंट, आपका हर वो काम भी आत्मिक सेवकाई है। आप आत्मिक काम कर रहे हो, आप सेवकाई कर रहे हो। हर व्यक्ति कलीसिया में सेवकाई में जुड़ा हुआ है। ओके, प्रभु के नजरिया से हमें देखना है। ओके, और नए करार के विश्वासियों के लिए इन सब आज्ञाओं को मिलाकर यीशु मसीह ने केवल 2 आज्ञा दिया है। वो 2 आज्ञा में ये सब आज्ञा मिला हुआ है। वो कौन सा है 2 आज्ञा? परमेश्वर को पूरे हृदय, पूरे मन और पूरे दिल से हम प्रेम करेंगे। मत्ती का 22 अध्याय उसका 37 वाक्य पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37। मत्ती 22 उसका 37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। बस और 1 मिनट। तो बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह स्वयं। ओके, ये वही यीशु मसीह है जो यहूदियों के साथ, इजरायलियों के साथ भी व्यवहार किया था। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा, त्रिएक देव उस समय भी था। ओके, और परमेश्वर इजरायलियों को जो आज्ञाएं दिया, बहुत सारे आज्ञाएं दिया। ओके, तो हमें ये सोचकर डरने की जरूरत नहीं या चिंता करने की जरूरत नहीं कि हम वो सब आज्ञाएं, पुराने करार के वो सब आज्ञाएं कैसे हम पालन करेंगे। ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि तुम परमेश्वर को प्रेम कैसे करेंगे? अपने पूरे हृदय से, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से और अपने सारे मन से प्रेम रख। प्रेम करेंगे, और ये सबसे मुख्य आज्ञा है। बराबर? यस। इंग्लिश में लिखा है दिस इज द फर्स्ट एंड ग्रेट कमांडमेंट। और आगे पढ़िए। और उसी के समान यही दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बस दूसरी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख। ऐसा लिखा है ना? अपने समान प्रेम रख। अपने समान, ये सबसे मुख्य शब्द है वहां पर। तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख। केवल उतना कहा होता यीशु मसीह तो बहुत आसान होता। ओके, हम अपने हिसाब से प्रेम करेंगे। हमारा पड़ोसी हमारे साथ अच्छा है तो हम उनके साथ अच्छे रहेंगे। ओके, और पड़ोसी कौन है हमारा? ये हम सब जानते हैं। यीशु मसीह ने उस अच्छा सामरी के दृष्टांत के द्वारा हमें सिखाया कि हमारा पड़ोसी कौन है। ओके, केवल आपके बाजू वाले फ्लैट में या बाजू वाले चौल में रहने वाला व्यक्ति केवल आपका पड़ोसी नहीं है, परंतु आप इस संसार के हर गली और नगर से जाते आते वक्त आपके नजर में जो भी आता है, जिनको आपका मदद का जरूरत है, ओके, वो आपका पड़ोसी है। या मैं यदि ऐसा कहूं, मदद का तो जरूरत बहुत लोगों को है, सबको तो हम मदद नहीं कर सकते। ओके, हम एक यात्रा, एक छोटी सी यात्रा, ओके, 10 किलोमीटर का एक यात्रा भी यदि हम करें, उस 10 किलोमीटर में आप
20 लोगों को आप देखेंगे हर सिग्नल में, ओके, कुल मिलाकर 20 लोग के अंदाजा में आपको मिलेगा जो जरूरतमंद लोग हैं, लेकिन सबको शायद आप मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना याद रखिए, जिन लोगों के प्रति परमेश्वर आपके दिल में बोझ डालता है, वो बोझ डालने पर भी जिन लोगों के प्रति आपका मन पिघलता है, ओके ओके, आप यदि नजरअंदाज करते हो तो आप और मैं उस याजक के समान है, उस धार्मिक व्यक्ति के समान है जो इस घायल व्यक्ति को देखकर भी वहां से निकल पड़ा, नजरअंदाज किया। तो कम से कम यदि हम गाड़ी में से उतर के जाकर कुछ कर नहीं पाए तो भी कम से कम हम उस व्यक्ति को लेकर प्रार्थना कर सकते, दिल से परमेश्वर के सामने उस व्यक्ति को लेकर जा सकते हैं। ओके, तो यदि उससे भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं, जाकर कुछ कर सकते हैं तो करो, प्रभु आपको बल देता है तो करो। लेकिन हमारा मन कैसा है? पड़ोसी से प्रेम करो नहीं कहा यीशु ने, पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यदि उसी अवस्था में आपका बेटा या बेटी पड़ा होता, आपका पति या पत्नी पड़ा होता उसी अवस्था में, तो आप सब दिक्कतों को, सब मुश्किलों को पार करके भी आप कैसे भी उस परिस्थिति में मदद करेंगे। आपके परिवार के कोई रहेंगे तो जरूर मदद करेंगे। ओके, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा चीज आप करेंगे, आपके परिवार के कोई रहेंगे तो। इसीलिए यीशु कहता है आपके समान प्रेम करो, आपके समान प्रेम करो पड़ोसी से। तो ये 2 आज्ञाएं यीशु मसीह ने दिया, और ये 2 आज्ञाएं देकर यीशु ने क्या कहा? सबसे मुख्य बात, 40 वाक्य, यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। यही 2 आज्ञाओं में सारी भविष्यवक्ता और व्यवस्था का आधार है। व्यवस्था का आधार है। आधार मतलब जो व्यवस्था हम निर्गमन का पुस्तक में पढ़ रहे हैं ना, व्यवस्था मतलब आज्ञाएं, परमेश्वर के आज्ञाओं को जो हम पढ़ रहे हैं पुराने करार में, यीशु मसीह नए करार में कहता है वो सारा आज्ञाओं का आधार, सारे भविष्यवक्ताओं ने जो सिखाया उसका आधार ये 2 आज्ञा में है। अंग्रेजी में लिखा है, ऑन दीज 2 कमांडमेंट्स हैंग ऑल द लॉ एंड द प्रॉफिट्स। सारा पुराना करार ये 2 आज्ञाओं में टंगा हुआ है। आमीन। तो ये 2 आज्ञा यदि आप पालन करेंगे तो ये समझ लो कि आपने पुराने करार का सारे आज्ञाएं पालन कर चुका है, ऐसा समझ लो। क्यों? क्योंकि यदि आप परमेश्वर को पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से यदि आप प्रेम करते हो 100%, तो पुराने करार में जो यीशु ने कहा है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, ये मत करो, वो मत करो। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो पूरे हृदय से, तो आप कैसे हत्या कर पाओगे? कैसे आप व्यभिचार कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और दूसरा आज्ञा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। ओके, यदि आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो, अपने समान प्रेम करते हो, तो क्या आप किसी को भी कभी हत्या कर सकते, व्यभिचार कर सकते हो, चोरी कर सकते हो? कैन यू कवेट योर नेबर्स गुड्स? व्हाट डू यू कॉल फॉर कवेट? लालच। हाँ, क्या आप लालच करेंगे दूसरों के चीजों का या दूसरों के कोई भी व्यक्ति का, कोई भी चीजों का? ओके, और बाकी सब जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा, सारी आज्ञा है। परमेश्वर से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम। पड़ोसी मतलब आपके जीवन में जो भी आपके साथ
जिसका भी मुलाकात होता है वो आपका पड़ोसी है। ओके, तो इन दो आज्ञाओं पर केवल ध्यान दो, इन दो आज्ञाओं पर केवल ध्यान दो। ओके, हम पूरा व्यवस्था पालन कर पाएंगे। आमीन। तो इसलिए बहुत अहमियत है हमें पुराने करार का परमेश्वर के दिए हुए वचनों पर ध्यान देना। ओके, और निर्गमन का पुस्तक उसका 23 अध्याय 20 वाक्य पढ़ेंगे। निर्गमन का पुस्तक 23 अध्याय चैप्टर 23 वर्स 20, 20 वाक्य। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे बेचता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। हाँ, सुन, मैं किसको बेचता हूँ? एक दूत को बेचता हूँ, तेरे पीछे पीछे बेचता हूँ, ऐसा लिखा है। हाँ, तेरे आगे आगे आगे। ओके, एक दूत को बेचता हूं, तेरे आगे आगे बेचता हूं। क्यों बेचता हूं? जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। इस वचन पर मनन कीजिए सभी, हम सब इस वचन में मनन करेंगे। परमेश्वर ने योजना किया है आपके जीवन में। आज यदि 10 लोग इस बाइबल स्टडी में जुड़ा है या 15 लोग जुड़े हैं, हर 15 लोग, ओके, हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का एक उद्देश्य है, परमेश्वर का एक मकसद है। ईच वन ऑफ यू, गॉड डजंट हैव अ फैमिली प्लान, गॉड हैज एन इंडिविजुअल प्लान। जब हम पॉलिसी खरीदने जाते, इंश्योरेंस का पॉलिसी या ऐसा कोई प्लान लेने जाते हैं, कभी कभी कोई फैमिली प्लान होता है, अलग अलग। ओके, लेकिन परमेश्वर के राज्य में फैमिली प्लान नहीं है। परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से प्रेम करता है, और व्यक्तिगत परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपके जीवन में। गॉड हैज अ स्पेसिफिक प्लान फॉर यू। ओके, जब हमारा उद्धार हुआ तब भी हमारा एक व्यक्तिगत उद्धार हुआ है। हमारा एक पारिवारिक उद्धार साथ में नहीं होता। मेरा माता पिता का उद्धार हुआ है इसलिए मेरा भी उद्धार हो चुका है, ऐसा मैं नहीं समझ सकता, या ये गलत है। मैं व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर को प्रभु करके, यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करना है। I need to acknowledge God, I need to acknowledge Jesus as my Lord and Savior personally. My personal encounter with God has to happen. मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी पत्नी या मेरा पिता या मां का उद्धार हुआ है और बपतिस्मा ले लिया है तो मेरा भी उद्धार हो गया है। नो, ऐसा नहीं। व्यक्तिगत उद्धार, व्यक्तिगत परमेश्वर का योजना है हम सबके जीवन में। ओके, और उस योजना की ओर परमेश्वर आपको और मुझे व्यक्तिगत रूप से चलाता है। भले हम सब साथ में वचन सुनते होंगे, हम सब साथ में एक परिवार है भले, और हम सब साथ में बढ़ते होंगे आत्मिक जीवन में, वचन में बढ़ते होंगे, लेकिन हमारा एक व्यक्तिगत यात्रा है, व्यक्तिगत संबंध है प्रभु के साथ। ओके, और वचन कहता है जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें चुना है, बुलाया है, उस उद्देश्य की ओर परमेश्वर हमें ले चलेगा। पढ़िए और एक बार 20 वाक्य।
सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है हाँ, उसमें तुझे पहुंचाएगा। पहुंचाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ये प्रॉमिस है, वादा है। परमेश्वर पहुंचाएगा। गॉड इज फेथफुल टू लीड यू एंड to make you reach and fulfill his plan and purpose in your life. Okay? तो मैं एक दूत को भेजूंगा। ये कौन है ये दूत? कौन है ये दूत? परमेश्वर कह रहा है मूसा से, मैं एक दूत को भेजूंगा। I will send an angel. Who is this angel? Okay? ये दूत कौन है? थोड़ा हम देखेंगे। निर्गमन का ये पुस्तक, उसका 3रा अध्याय का 2रा वाक्य पढ़िए। Exodus chapter 3 verse 2. और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ये वही दूत है, परमेश्वर का दूत, जो मूसा के सामने प्रकट हुआ उस जलता हुआ झाड़ी के अंदर, उसके द्वारा। ओके? ये वही दूत है जो पर मूसा को बुलाया। मूसा का बुलावट इस दूत के द्वारा हुआ। ओके? ये वही दूत है, परमेश्वर का दूत, जो मूसा को कहा कि मैं तेरे साथ हूं जब वो फरो के पास जाएगा तब। ये वही दूत है जो उस अग्नि के द्वारा मूसा से बात किया था। जब लोग पूछेंगे कि किसने तुझे भेजा है, तो के मैं हूं ने भेजा है। तो ये कौन है ये दूत? परमेश्वर स्वयं। ओके? या कोई अनुवाद कहता है, कोई शास्त्र के पंडित लोग कहते हैं, ऐसा अनुवाद लगाते हैं कि ये यीशु मसीह है। कोई कहता है ये पवित्र आत्मा है। ओके? जो मैं मानता हूं। ओके? हम आगे देखते जाएंगे कौन है ये दूत। 14 अध्याय, निर्गमन का 14 अध्याय, उसका 19 वाक्य पढ़िए। 14 अध्याय, उसका 19 वाक्य। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। हाँ, ये दूत जो है, परमेश्वर का दूत, हमेशा इजरायलियों के आगे आगे जाता था। लेकिन एक समय आया जब आगे से निकलकर पीछे हो गया। क्यों पीछे हो गया? दुश्मन को देखकर ये परमेश्वर का दूत डर गया। हमने देखा ये परमेश्वर का दूत परमेश्वर स्वयं है या यीशु मसीह है। क्या यीशु मसीह दुश्मन को देखकर डर गया इसीलिए अब इजरायली लोगों के पीछे आके खड़ा हुआ? नहीं। ये 14 अध्याय जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, इजरायलियों के आगे क्या था? लाल समुंदर था। पीछे कौन आ रहा है? मिस्र देश का सेना आ रहा है, वार करने के लिए आ रहा है। इसीलिए परमेश्वर का दूत आगे से निकलकर पीछे आया इन दुश्मन के सेना को मारने के लिए। आमीन। तो परमेश्वर का दूत आगे भी हमारे आगे आगे क्यों चलता है? हमें मार्गदर्शन देने के लिए। Why does the angel of God go ahead of us? To lead us, to guide us. But if the enemy attacks us, okay, हमारा दुश्मन बहुत ही कायर दुश्मन है। शैतान जो है ना, कायर है। क्यों? क्योंकि वो पीछे से वार करता है। जो कायर नहीं होता वो आगे से वार करने आता है। ओके? तो पीछे से वार करने भले आए,
हमें नहीं पता होगा, लेकिन परमेश्वर यहोवा जानता है। वो परमेश्वर यहोवा जो हमें आगे से चलाता है, अक्सर वो जानता है कब हमारे पीछे भी आकर दुश्मन, जो कायर दुश्मन हमें पीछे से वार करना चाहता है, उसको मार सकता है। तो ये परमेश्वर का दूत लाल समुद्र के सामने इजरायलियों के पीछे आया, ओके, और कैसे दुश्मन को वार किया वो हम सब जानते हैं। ओके, 15वां अध्याय, निर्गमन का पुस्तक 15वां अध्याय, उसका 17वां वाक्य, चैप्टर 15 वर्स 17। तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज बगवाले 15-17 तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज बाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। यह वही स्थान है, ए यहोवा, जिससे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने अपने ही स्थिर किया है। ये वही स्थान है, वही पवित्र स्थान है, आपका निवास स्थान है। ओके, सो परमेश्वर का निवास स्थान तक परमेश्वर पहुंचाएगा। 17वां वाक्य शुरू कैसे होता है, पढ़िए और एक बार। तू उन्हें पहुंचाकर अपने नीच बाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। बसाएगा, बस। बसाएगा। तू क्या करेगा? बसाएगा। हाँ, तू उन्हें पहुंचाकर। हाँ, पहुंचाकर। So God will not only lead us, God will also help us to reach the destiny. And God will not only make us reach the destiny, but God will establish us there. तो परमेश्वर हमें केवल मार्गदर्शन नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर हमें पहुंचाएगा भी। और परमेश्वर हमें केवल पहुंचाएगा ही नहीं, परंतु परमेश्वर हमें पहुंचाकर स्थापित भी करेगा। कहां पर? उनके निवास स्थान। ओके, और परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करके, पहुंचाकर, स्थापित करने के पहले, ये तीनों चीज करने के पहले परमेश्वर ने हमें एक बंधन से छुड़ाया भी था। ओके, वो भी हमें समझना है। परमेश्वर हमें एक बंधन से छुड़ाया। गॉड रिडीम्ड अस फ्रॉम अ बॉन्डेज। ओके, जो परमेश्वर हमें एक बंधन से छुड़ाया, वो परमेश्वर हमें उनके नियुक्त किए हुए जगह पर पहुंचाता भी है। केवल छुड़ाने का काम नहीं है परमेश्वर का, परंतु परमेश्वर का काम पहुंचाना भी है। निर्गमन का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और 17 वाक्य पढ़िए। 3रा अध्याय 17 वाक्य। और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। तो इस वाक्य में परमेश्वर 2 चीज कहता है। मैं तुम्हें कहां से निकालूंगा? मिस्र के दुखों में से। हाँ, मिस्र देश के दुखों में से या बंधन से निकालूंगा। सो गॉड टॉक्स अबाउट delivering us out of the bondage, out of Egypt. Okay, so there is something from where God takes us out.
and there is somewhere where God takes us in. परमेश्वर केवल हमें बाहर निकालता नहीं परंतु अंदर भी ले चलता है, वो है पूर्णता। जिस मकसद से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला बंधन से, वो मकसद की ओर परमेश्वर हमें ले भी चलता है, प्रवेश भी कराता है। हमारा परमेश्वर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमें केवल निकालता है और हमें छोड़ देता है। बंधन से निकालना और फिर रास्ते में छोड़ देना नहीं, परमेश्वर हमें बंधन से निकालता है और उनके निवास स्थान में प्रवेश भी कराता है। So God takes us out and takes us in. और उस कारण परमेश्वर उनका स्वर्गदूत, उनका दूत को बेचता है, स्वर्गदूत नहीं सॉरी, उनका दूत को बेचता है। अब लौट आएंगे निर्गमन का 23 अध्याय, उसका 20 वाक्य जो हम शुरुआत किए थे इस वाक्य से। तो निर्गमन का 23 अध्याय का 20 वाक्य में हमने क्या पढ़ा कि मैं किसको भेजूंगा? एक दूत को भेजूंगा, तेरे आगे आगे भेजूंगा। ओके, क्यों भेजूंगा? ताकि जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने एक दूत को भेजा है। ओके, और वो दूत और कोई नहीं है, परमेश्वर स्वयं है पवित्र आत्मा के रूप में। आज पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ है। ओके, हमारी रक्षा करने के लिए और किसके लिए? पढ़िए उसी वचन में आगे। जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा, उसमें तुझे पहुंचाएगा। ओके, सो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। क्यों दिया है? ताकि हमें मार्ग में रक्षा करने के लिए, मार्ग में मार्गदर्शन करने के लिए और हमें पहुंचाने के लिए। ओके, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। हम सब ये याद रखिए। ओके, यूहन्ना का पुस्तक निकालेंगे। कौन है ये दूत हमारे जीवन में नए करार के विश्वासियों के लिए? यूहन्ना का पुस्तक उसका 14 अध्याय 14, उसका 16 वाक्य पढ़िए। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, तो पर ये वही परमेश्वर है, ये वही यीशु मसीह है जो यहूदियों को पुराने करार में निर्गमन का पुस्तक में कहा था कि एक दूत मैं तेरे आगे आगे भेजूंगा। ओके, वही यीशु मसीह पृथ्वी में आने के बाद, स्वर्ग जाने के पहले शिष्यों से कहता है कि मैं पिता से क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। क्या प्रार्थना करेगा? कि वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो हमारे साथ कौन है? एक सहायक है। आप जहां कहीं भी जाओ, सहायक है। आप कौन से भी परिस्थिति में हो। यहूदी लोग 420 साल मिस्र देश के बंधन में थे, मिस्र के बंधन में थे। ओके, लेकिन जब वे उस बंधन में 420 साल तक थे, तब भी परमेश्वर था, परमेश्वर जानता था। आप पूछेंगे कि परमेश्वर ने इतने साल क्यों उनको उस बंधन में रहने दिया, क्यों उनको नहीं छुड़ाया? ओके, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम पूछ सकते हैं, लेकिन ओके, अनंत काल में जब हम प्रवेश करेंगे
तब हमारे बहुत सारे प्रश्नों का हमें प्रकटीकरण मिलेगा। बहुत सारे क्यों जैसे प्रश्न है ना, हमें शायद अब पता नहीं चलेगा, परंतु सब खुलासा होगा। क्यों परमेश्वर उस समय ने किया, परमेश्वर क्यों इतना साल मुझे उस दुख वाले अवस्था में, उस कठिनाई में से होकर जाने के लिए परमेश्वर मुझे क्यों जाने दिया, उसके पहले क्यों नहीं बचाया। ऐसे बहुत सारे क्यों वाले सवाल हम सबके मनों में होगा, लेकिन बहुत सारे सवाल का उत्तर शायद हमें अभी नहीं मिलेगा। बहुत सारे उत्तर हमें मिलेंगे, लेकिन जिन उत्तर को नहीं मिला सबका स्पष्टीकरण, प्रकटीकरण होगा, एक दिन निश्चय होगा। ओके, लेकिन कभी भी हम शंका न करें कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। परमेश्वर सदा सर्वदा हमारे साथ है। इसीलिए भजन संगीता लिखने वाला दाऊद कहता है, अंधकार के उन तराइयों में से भी जब मैं होकर गुजरूं, प्रभु मेरे साथ है। तो प्रभु केवल हरी चराइयों में नहीं है, लेकिन अंधकार के उन तराई में भी है। शारोन का गुलाब हमारे साथ है। हम वो गीत गाते हैं ना, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। आपको पता है, शारोन का गुलाब, यीशु मसीह को शारोन का गुलाब कहा जाता है। लेकिन ये गीत में जैसे हम गाते हैं, शारोन का गुलाब है तो मेरा मसीहा। मसीहा मतलब सेवियर, हमें छुड़ाने वाला। ये शारोन क्या है? हम गाने के लिए तो गाते हैं शारोन का गुलाब, ओके, लेकिन शारोन यहूदियों को यदि आप पूछेंगे तो एक यहूदी व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है शारोन क्या है। शारोन एक ऐसा जगह का नाम है जो तराई में है, पहाड़ के ऊपर नहीं, पहाड़ के नीचे तराई में ऐसा एक जगह का नाम है शारोन। ओके, तो तराइयों में से भी, अंधकार के उस तराइयों में से भी यदि मैं होकर गुजरूं, तो मैं वो गीत गाऊंगा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। और वो गुलाब है। गुलाब किसके बीच में है? गुलाब का उस पौधा में ही देखो, आप ध्यान से देखो, पूरा कांटों से भरा हुआ है। उन कांटों के बीच में भी गुलाब, कितना खूबसूरत और सुगंध रूपी गुलाब है। ओके, तो आपके परिस्थिति उस कांटों के बीच में जैसा परिस्थिति भी हो, उस तराई जैसे परिस्थिति भी हो, परंतु आंख खोलकर देखो, आपको एक गुलाब मिलेगा, और वो गुलाब और कोई नहीं परंतु यीशु स्वयं है। ओके, ही इज द रोज ऑफ शारोन। वो हमारा शारोन का गुलाब है। शारोन जैसा अवस्था, तराई जैसा अवस्था का गुलाब वो है। आमीन। और गुलाब किसको दर्शाता है? प्रेम को दर्शाता है। इस सांसारिक संसार में जो लोग हैं ना, प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को उनके सांसारिक प्रेम के लिए गुलाब को इस्तेमाल करते हैं, अपना प्रेम को दर्शाने के लिए। तो गुलाब उस प्रेम का चिन्ह है, लेकिन हमारे पास गुलाब यीशु स्वयं है। परमेश्वर स्वयं प्रेम का चिन्ह है। परमेश्वर प्रेम है और वो गुलाब हमारे साथ है। आमीन। तो परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, परमेश्वर ने हमें साथ दिया, और परमेश्वर हमें उस लक्ष्य की ओर ले चलेगा। आपके यात्रा में आंख उठाकर देखो, आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वयं दिखाई देगा उस कठिन परिस्थिति में भी। ओके, तो यूहन्ना का 14 अध्याय 16 वाक्य में यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा पिता से। क्या प्रार्थना करूंगा? कि वो तुम्हें क्या दे? चॉकलेट दे? वो तुम्हें क्या दे? घर दे?
गाड़ी बंगला दे, पैसा दे, सोना दे, आप किस चीज की राह देखते हैं? आप किस चीज, क्या आपको जॉब चाहिए? क्या आपको एक घर चाहिए? आपको क्या चाहिए? सांसारिक चीजों में आपको क्या चाहिए? ये सब अच्छी चीजें हैं। संसार में जो भी आपको चाहिए ना, वो शायद हो सकता है आपका जरूरतमंद का चीज होगा। ओके, उसके लिए प्रार्थना करना कोई गलत नहीं है, परंतु यीशु मसीह जब आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करता है और पिता से मांगता है, क्या मांगता है? मैं पिता से मांगूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे। ओके, हमें इस संसार के जो भी चीजें हैं, जरूरत वाली चीजें, हाँ मैं कह रहा हूं, जो भी जरूरत वाली चीजें हमें लगता है, वो पैसा हो, जॉब हो, घर हो, खाना हो, ये सब बहुत ही जरूरत वाली चीजें हैं। These are essential things. Even in those essential things that we desire from God, more than that, ask God for the helper who gives us these essential things, who satisfies us even when we don't have these essential things. हमें इन जरूरत वाली चीजें भले न मिले कभी कभी, जिनकी हम आशा रखते हैं, हमें वो व्यक्ति जरूर हमारे साथ होना चाहिए, वो सहायक जो हमें इस जरूरतमंद चीजों के ना होने पर भी हमें तृप्तिकरण देता है। Let us have the Holy Spirit always with us, and let us pray for that always. And God has given us the Holy Spirit ताकि पवित्र आत्मा क्या करे? अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते। हाँ, 16वां वाक्य के अंत में क्या कहता है? क्योंकि यह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हाँ, वो तुम में होगा। ओके, क्या पवित्र आत्मा हमारे साथ है, ये हमें हमेशा याद रखना है। जिस दिन हमने परमेश्वर को ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन से परमेश्वर ने हमें उनका आत्मा दिया है। ओके, एक डिपॉजिट के रूप में। ओके, एक मोहर लगाया हमारे ऊपर। परमेश्वर ने हम सब के अंदर एक पवित्र आत्मा दिया है, यदि हमने उनको ग्रहण किया है और वाणी में बपतिस्मा लिया, यदि हमारा उद्धार हुआ है, तो मन फिरा हुआ है, तो परमेश्वर हम सबको पवित्र आत्मा दिया है। ओके, तो कोई शक नहीं है, हम सबके अंदर पवित्र आत्मा है। आमीन। लेकिन हमें अक्सर हमारे चाल चलन पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि यदि हमारा चाल चलन पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं है, संसार के अनुसार है, तो हमें जांच कर देखना है कि क्या पवित्र आत्मा है हमारे साथ, हमारा साथ दे रहा है। ये हमें अक्सर मनन करते रहना है। क्यों? क्योंकि यदि हम पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे, ओके, तो पवित्र आत्मा शायद हमारे साथ नहीं होगा। ओके, यदि हम जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दी है, उन आज्ञाओं का पालन करते हुए यदि हम नहीं जिएंगे, तो हो सकता है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। ओके, और उनकी आज्ञा क्या है? यीशु की आज्ञाएं क्या है? चिंता मत करो, भयभीत मत रहो। हमने पिछले बार कुछ वाक्यों को देखा था। Do not be troubled, do not fear, do not worry, let not your hearts be troubled. Where is your faith? आपका विश्वास कहां पर है? इन सब सवाल और आज्ञा परमेश्वर हमसे
करता है। ओके, यदि हम अपने अंदर भय को भरने देता है, भयभीत होने देता है, चिंता को अंदर भरता है, तो अपने आप पवित्र आत्मा का उपस्थिति निकल जाता है। ओके, वो हमारे भरने से होता है। आप एक पात्र को लीजिए, टेक अ वेसल एज एन एग्जाम्पल, आई एम सेइंग, एक उदाहरण के रूप में आप एक पात्र को लीजिए। उस पात्र के अंदर यदि एक लाल कलर का एक क्या बोलते हैं पानी, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में, अभी मैं करके नहीं बता सकता, लेकिन मुझे याद है बच्चों को VBS में हमने ये करके बताया था एक बार। ओके, एक ग्लास में आप पानी लेकर उस पानी के अंदर रंग डालिए। तो उदाहरण के रूप में आपने लाल रंग डाला समझिए, और वो पानी का रंग क्या हो गया? लाल हो गया। अब ये लाल रंग वाला जो पानी इस ग्लास के अंदर है, उसी ग्लास के अंदर एक दूसरे ग्लास में शुद्ध पानी लेकर आप इस ग्लास के अंदर डालते जाओ, जिसके अंदर लाल पानी है, आप डालते जाओ। ओके, और ये ग्लास भर के उमड़ने दो, लेट इट कीप ओवरफ्लोइंग। ओके, आप जितना ये अच्छा पानी डालते जाएंगे इस लाल पानी वाला ग्लास में, और पानी उमड़ते जाएगा, आप देखोगे कि लाल कलर का जो पानी है उमड़कर ये साफ पानी भरते जाएगा, और खराब पानी निकलते जाएगा। उमड़ने दो, लेट इट कीप ओवरफ्लोइंग एंड कीप फिलिंग द गुड वाटर। एक समय आएगा, ओके, कुछ समय तक आप करते रहेंगे तो एक समय आएगा जब आपका ये लाल पानी भरा हुआ ग्लास है ना, पूरी तरह से शुद्ध पानी हो जाएगा। ये है परमेश्वर का कार्य हमारे अंदर। जब हमारे अंदर हमारे पाप से भरा हुआ गंदगी हमारे अंदर भरा हुआ है, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा डालकर पूरे गंदगी को साफ कर देता है। ओके, लेकिन इसी कार्य को आप और मैं यदि उल्टा करेंगे, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर भरा हुआ है, हम इस पात्र के अंदर, हमारे अंदर गंदगी को हम डालते जाएंगे, तो क्या होगा? अच्छा पानी निकलते जाएंगे, और एक समय आएगा तब पूरी तरह हम गंदगी से भर जाएंगे। ओके, सो that's a reverse effect also. ओके, उसका उल्टा प्रतिकरण भी होता है। जब हम चिंताओं को भरते जाएंगे, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है उसका विरोध हम कर रहे हैं, हम भयभीत होकर रहते हैं, हम आज्ञाओं को पालन नहीं करते, क्या चीजों को हम अंदर डालते, जितना हम अंदर डालते जाएंगे पवित्र आत्मा शोकित हो जाते और निकल जाते। वो नहीं निकलते, हम निकाल देते हैं। सो लेट अस नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 16 वाक्य जो हमने पढ़ा, वो यीशु मसीह का उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था? कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे हमेशा, और हमें सदा के लिए हमेशा हमारे साथ हमें चलाए। 26 वाक्य क्या कहता है? यूहन्ना 14 का 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो पवित्र आत्मा हमें सब बातें सिखाएगा। ओके, हम क्या देख रहे हैं? यहूदियों को जो परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हें एक दूत दूंगा, और वो दूत तुम्हारे आगे आगे जाएगा, तुम्हें चलाएगा, और तुम्हें
प्रदेश में पहुंचाएगा जो मैंने तुम्हें वादा किया है, उसके समानता में हमारे साथ क्या है? नए करार के विश्वासियों के साथ परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है और हमें चलाएगा। का अर्थ क्या है? हमें वचन में चलाएगा, ओके, हमें सिखाएगा। ये सहायक हमें सिखाएगा और सिखाकर हमें याद भी दिलाएगा। जब कभी कठिन परिस्थिति आएगा तब पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है, मुझे याद दिलाता है। हम क्या करते हैं? जो भी याद दिलाता है उसको हमें कार्य में लाना है। आमीन। और 15वां अध्याय उसका 26 वाक्य पढ़िए, यूहन्ना 15 का 26। परंतु जब सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। वो मेरी गवाही देगा। अगला कार्य, पवित्र आत्मा जो हमारे साथ रहेगा सदा सर्वदा के लिए, वो हमें सिखाएगा, वो हमें याद दिलाएगा, और यहाँ पर लिखा है वो हमें हमारे गवाही भी देगा। He will testify of परमेश्वर का गवाह बनके वो जिएगा हमारे अंदर, ओके, हमारे द्वारा। और 16 अध्याय का 13 वाक्य पढ़िए। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ओके, तो किसी को भी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी को भी भविष्यवक्ता के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि विश्वासी लोग, ओके, विश्वास में आने के पहले, जब हम पहले वाले धर्म में थे, ओके, तब हम बाबा हो या ज्योतिष हो ऐसे लोगों के पास शायद गए होंगे। लेकिन विश्वास में आने के बाद भी कई विश्वासी लोग हैं जो भविष्यवक्ताओं के पास जाते हैं, क्या होगा बताइए करके। ओके, तो भविष्यवक्ता परमेश्वर का दास है, लेकिन परमेश्वर का दास या भविष्यवक्ता के पास ऐसा हमारा समझ नहीं होना चाहिए कि उनके पास जाकर हमें जो वो कहेगा वही होगा, ऐसे करके। इट्स नॉट, द प्रॉफिट्स आर नॉट पीपल, और गॉड्स सर्वेंट्स आर नॉट पीपल on whom we should depend in such a way that we fail or forget to depend on God directly. हम परमेश्वर पर भरोसा करना भूलकर केवल भविष्यवक्ताएं या परमेश्वर के दासों के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखना, जो भी उन लोगों ने कहा वही एक अंतिम शब्द है, ऐसे सोचने वाले बहुत विश्वासी लोग हैं। ओके, हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थी वचन हमें सिखाता है, भविष्यवक्ता नहीं है, परमेश्वर के दास लोग नहीं है, केवल यीशु मसीह है मध्यस्थी। ओके, ओनली जीसस इज आवर मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, द बाइबल टीचर्स। तो इसीलिए हमें अपने आप को सिखाना है कि हम बिना भयभीत होकर परमेश्वर के पास जाए, यीशु के नाम से जाए। ओके, हमें डायरेक्ट एक्सेस है, सीधा हमें प्रभु के पास जा सकते हैं। ओके, किसी और के भरोसे न रहना है, किसी और के भरोसे नहीं रहना है हमें। ओके, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, यीशु ने हमें दिया है, ताकि हमें पवित्र आत्मा बात करे, मार्गदर्शन करे
और वो हमें सब कुछ बताएगा, वचन के द्वारा बताएगा। आमीन। तो परमेश्वर ने हम सब के साथ हमारे आगे आगे जाने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। ओके, और यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग जाने के पहले हमसे क्या कहा? मत्ती का 28 अध्याय उसका 20 वाक्य पढ़िए। मत्ती का 28 अध्याय उसका 20 वाक्य। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वादा किया हुआ यीशु मसीह हमारे साथ है। कब? जब सब कुछ हमारा अच्छा है समय तब, या बुरे समय में भी है? बुरे समय में भी है। ओके, तुरंत हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है, तो बुरे समय में यीशु हमारे साथ है, तो यीशु उस बुरा समय को निकाल क्यों नहीं देता? उसको अच्छा क्यों नहीं कर देता? जब यीशु के साथ यही बुरा समय चल रहा था, जब वो इस पृथ्वी में था, तो क्या पिता ने उनका बुरा समय को निकाल दिया था? नहीं। यीशु ने प्रार्थना तो किया, पिता ये प्याला यदि मुझसे हट सके तो आप निकाल दो, परंतु नहीं तो तेरी इच्छा पूरा होने दे। ओके, लेट योर विल बी डन। तो प्रभु का इच्छा यीशु मसीह के लिए क्या था? वो प्याला, दुख का प्याला, ओके, और महासंकट का प्याला यीशु लेने के लिए यीशु अपने ऊपर ले लिया, अपने आप को शून्य किया। जो यीशु का अधिकार था वो यीशु ने छोड़ दिया। ओके, और पत्रस उनके पत्रिका में कहता है, ओके, कि यदि हम दुख उठाते हैं, यदि हम दुख में है, यदि हम संकट में है, तो हम यीशु के साथ सहभागी होते हैं उनके संकट में भी। जैसा यीशु संकट से गया, यीशु दुख में से गया, हम जब दुख में जाते हैं, when we go through problems, okay, we are partakers of God's Jesus suffering. We become partakers of his suffering. Okay, तो हम कौन सा विषय को देख रहे हैं? निर्गमन का पुस्तक उसका 23 अध्याय का 20 और 21 वाक्य में, 20 वाक्य में, मैं तुम्हारे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। ओके, तो वो दूत कौन है? यीशु स्वयं है, पवित्र आत्मा है जो हमारे साथ है आज भी। ओके, और हमें मार्गदर्शन करने के लिए है, हमें पहुंचाने के लिए है। जो योजना ये परमेश्वर ने किया है उस योजना का पूर्तिकरण के लिए है। लेकिन पूर्तिकरण कैसा होता है? सुख विलास में नहीं, दुख के द्वारा भी, संकट के द्वारा भी, अंधकार के उन तराइयों के द्वारा भी होता है पूर्तिकरण। लेकिन उनका दूत हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। ओके, और 21 वाक्य पढ़िए, निर्गमन का 23 अध्याय उसका 21 वाक्य। उसके सामने सावधान रहना, हाँ, और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि मैं उसमें मेरा नाम रहता है। हाँ, ये दूत को जो मैं तुम्हारे साथ भेज रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनिए, परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, ये दूत को जो मैं तुम्हारे साथ भेज रहा हूं ना, इस दूत को हल्का में मत लेना।
पवित्र आत्मा को हम अक्सर हल्के में लेते हैं। ओके, हम हमारे जड़ में प्रतिक्रिया करते हैं कई बार, लेकिन परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हल्के में मत लेना। ओके, अब पढ़िए और एक बार। उसके सामने सावधान रहना। सावधान रहना, सावधान, तो हर समय सावधान रहो। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, ये गर्व करने की बात है, लेकिन उस गर्व में हम भूल जाते हैं। तो सावधान रहना और उसकी मानना। उसकी मानना, ओबे हिज वॉइस। आगे, उसका विरोध न करना। विरोध न करना। आगे, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। ओके, विरोध न करना, ये इंग्लिश बाइबल में लिखा है डू नॉट प्रोवोक हिम। तो जब डू नॉट प्रोवोक मतलब पवित्र आत्मा को उत्सुक न करना, उत्सुक मत करना। उनका वो भस्म करने वाला आग है, तो उनको उत्सुक न करना दंड देने के लिए, ये है उसका अर्थ। डू नॉट प्रोवोक हिम। क्यों? क्योंकि वो अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि, पढ़िए, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। उसमें मेरा नाम रहता है। परमेश्वर यहोवा, ओके, परमेश्वर मैं हूं करके उनका नाम, पवित्र आत्मा जो हमें दिया है परमेश्वर ने, इस पवित्र आत्मा के अंदर परमेश्वर यहोवा का नाम है। आमीन। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वयं है, तो उनके नाम को हम लिए फिरते हैं। इसीलिए आज्ञा पालन करते हुए चलते रहना, सावधानी में रहना हमेशा। यदि हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे, 22 वाक्य पढ़िए। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। तो एक तरफ हमें एक बहुत बड़ी आश्वासन है। क्या आश्वासन? कि परमेश्वर हमारा दुश्मनों का दुश्मन बनेगा, परमेश्वर दुश्मन बनेगा। ओके, गॉड विल बी एन एनिमी टू आवर एनिमीज। लेकिन उसके पहले परमेश्वर हमें सावधान करता है कि हम सावधान रहे कि हम परमेश्वर को उत्सुक ना करें, क्योंकि हम यदि आज्ञा पालन न करेंगे तो परमेश्वर हमारा विरुद्ध बनेगा, हमें क्षमा नहीं करेगा। ओके, इसीलिए हमें सावधानी से रहना है। जो पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमें दिया है, उस पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। एफिसियों का पुस्तक उसका 4वां अध्याय, जल्दी निकालिए। एफिसियों का पुस्तक 4वां अध्याय उसका 30 वाक्य। Which one? एफिसियों का पुस्तक 4वां अध्याय उसका 30 वाक्य। Ephesians 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए चाप दी गई है। हाँ, एक मोहर दी गई है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो जब हम उनके आज्ञाओं का पालन नहीं करते, ओके, तो आज्ञाएं केवल हत्या न करना, व्यभिचार न करना, ये नहीं है केवल आज्ञाएं। आज्ञाएं चिंता मत करो, ये भी आज्ञा है। अपने मन में क्या बोलते हैं, डू नॉट बी ट्रबल्ड। ओके, आप भयभीत होकर मत जियो, चिंतित होकर मत जियो। बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, अपना बोझ यीशु पर डालो। हमने वो गीत गाया, ये सब यीशु का आज्ञा है। ओके, आज्ञा पालन करते हुए हमें जीना है। यदि हम आज्ञा नहीं पालन करेंगे तो किसको हम शोकित कर रहे हैं? पवित्र आत्मा को। तो वचन कहता है पवित्र आत्मा को शोकित न करो, न करो। ओके, आखिरी का वचन पढ़ेंगे, मत्ती का पुस्तक 12वां अध्याय उसका 31 वाक्य। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 31 पढ़िए।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। सब प्रकार का पाप क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा का निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। ओके, तो ये बहुत गंभीर बात है। जिस दूत को परमेश्वर हमारे आगे आगे भेजा है, हमारे अंदर एक निवास स्थान बनाकर परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, उस पवित्र आत्मा को शोकित न करना। परमेश्वर कहता है सावधान रहो, क्षमा नहीं की जाएगी। ओके, कितने बार हमने गलत किया है। ओके, आज यदि हम परमेश्वर की इस आवाज को सुनते हो तो हम हमारे मनों को कठोर न करें, हम नम्र होकर परमेश्वर के सामने आए। ओके, हम प्रभु से क्षमा मांगे। हम यदि इस परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करते हुए, निंदा करते हुए, यदि हम इस निंदा में ही रहेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा, लेकिन हम इससे बाहर निकलेंगे। ओके, परमेश्वर से क्षमा मांगे तो प्रभु हमें विश्वास योग्य है हर प्रकार के पाप से क्षमा करने के लिए। ओके, लेट अस नॉट स्टे इन दैट सिन of grieving the Holy Spirit. Let us not stay in that sin. आइए हम सब आंख बंद करें। Let us all close our eyes. हम सब प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारा परमेश्वर है। यस, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारा शरीर, हमारा हृदय को आपका निवास स्थान बनाया है और आप हमारे अंदर है। पिता परमेश्वर, हर एक उन गंदगी को आप पूरी तरह से निकाल परमेश्वर हमारे अंदर से। हर एक उन आज्ञा उल्लंघन के स्वभाव को आप हमारे अंदर से निकाल परमेश्वर। यस लॉर्ड, हमें शुद्ध कर परमेश्वर, हमें पवित्र कर, क्योंकि आप पवित्र है। आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। यस लॉर्ड, मेक अस होली बिकॉज यू आर होली स्पिरिट हु इज विद इन अस। यस लॉर्ड, एक विजयवंत जीवन हम जी पाए, उसके लिए हमें सामर्थ्य दे प्रभु। यस लॉर्ड, हमें एक ऐसा मन दे कि जब हम गिरेंगे तब हम उठ खड़ा होंगे, जैसा पतरस से आपने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि जब तुम मुझे नकारेगा तब तुम उठकर तुम्हारे साथीदारों को तो उत्साहित करेगा। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर, हम सबको आप आशीष कर प्रभु, ताकि हम जहां कहीं भी, कौन से भी क्षेत्र में, हमारे जीवन के, आत्मिक जीवन के कोई भी क्षेत्र में हम गिरा हुआ है, वहां से हम उठ जाए और हमारे दौड़ को हम पूरा कर पाए। यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। Praise God. God bless you all. Praise God, everyone. Praise God. Praise Lord, brother. Praise the Lord. Lakshmi sister, praise the Lord. कैसा है आपका तबीयत? ठीक है, सुधार आ रहा है, परमेश्वर चंगाई कर रहा है मेरे को। आपके आवाज से पता चलता है, आपके आवाज में जोश है। Praise God, praise God. सब कल मिलेंगे, कल के सुबह की आराधना में। यदि यीशु आज नहीं आया तो हम कल मिलेंगे, नहीं तो हम बाद में मिलेंगे। God bless you all. धन्यवाद। God bless you. Praise God.